For decades, governments have worried about population explosion. They're worried about that population explosion would result in something like resource scarcity, food supply concerns, and whatnot. But there is a new demographic reality which is emerging across the world. If 20th century belongs to population explosion, 21st century will be belonging to population implosion or population stabilization. The world is worried about their population reducing across multiple countries. If you say Japan, their population has shrunk from 126 million to 123 million. Experts are warning that their population would go further to 87 million. And on another side, one of the state in South India, Andhra Pradesh, the CM now, Chandrababu Naidu, he says that he needs to increase the population of Andhra Pradesh by providing favorable population policies, pro-natal policies, which we call it as, to increase the population of Andhra Pradesh. Hello everyone, this is Venkatesh, your optional faculty, and in this session, I will try to decode all these dimensions और इसके साथ साथ कैसे इसको यूज करना चाहिए एग्जाम में in terms of a case study I will be discussing. Okay, so without much wasting of time, let's start. If you see in these kind of questions, UPSC tend to ask regularly such kind of questions in their exam. ये देखो, assess the challenges for countries with the largest share of aged populations. Last year देखो, the global demographic landscape is evolving with a rapid population growth in some places and rapid aging in others. जापान में यही हो रहा है, rapid aging. Elucidate with examples. तो इसीलिए हमको केस स्टडीज चाहिए, right? Case studies. Now let us see this. See what is happening in Japan. जापान का पॉपुलेशन एज ऑफ नाउ इट्स अराउंड 123 मिलियन, 12 करोड़ समझ लो, right? Now if you see, experts are saying that by 2050 the population would shrink to 87 million, and in the last 4-5 years it was shrunk from 126 3 years ago, 5 years ago. So what is happening? Population is declining. अगर population decline होता है तो फिर क्या होता है? What challenges will we face? We need to understand. इसी में एक कॉन्सेप्ट है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी करके. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ये कहता है कि एज ए कंट्री एग्रेरियन सोसाइटी से, ट्रेडिशनल सोसाइटी से टर्न्स इनटू एन इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी, उसका पॉपुलेशन मल्टीपल स्टेजेस से गुजरता है, एंड एट द सेम टाइम एज इट ट्रैवल्स, as the country moves across multiple stages, its population पहले हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट से धीरे धीरे लो बर्थ रेट लो डेथ रेट तक आ जाता है. और उसी को कंटिन्यू करके जापान में ऐसा हुआ कि वहां पर बर्थ रेट इतना कंटिन्यू हो गया, कम हो गया, और डेथ रेट थोड़ा बढ़ गया था, जिसके कारण वहां पॉपुलेशन हर साल श्रिंक होता जा रहा है. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन जापान. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? सी, इनिशियली व्हेन यू आर ए ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड ऑल, जहां पर आपको मेडिकल रिसोर्सेस भी नहीं, सी पॉपुलेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू मेन फैक्टर्स हियर, बर्थ रेट, डेथ रेट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. ये थ्योरी में माइग्रेशन के बारे में कुछ डिस्कस नहीं हुआ. अगर आपको बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स के लिए ये थ्योरी एंड देन माइग्रेशन के लिए दूसरा अगर ऐड हो गया तो फिर आपको पॉपुलेशन कैसे संभालने समझ में आ जाएगा, राइट? नाउ कीपिंग दिस इनटू कंसिडरेशंस, हाई स्टेशनरी, इनिशियली पॉपुलेशन ग्रोस लाइक डजंट ग्रो, लेकिन धीरे धीरे मेडिकल रिवोल्यूशन के कारण, ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण फूड सप्लाई बढ़ चुका है, डेथ रेट ओवरऑल कम हो जाता है, लेकिन बर्थ रेट वैसे ही रह जाता है, तभी जाके पॉपुलेशन बूम होता है. उसके बाद धीरे धीरे विथ डेवलपमेंट, विथ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इंक्रीजिंग, एजुकेशन इंक्रीज हो जाता है,
डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में मल्टीपल ट्रांजिशंस होते हैं। वुमेन का पढ़ाई, वुमेन्स का एजुकेशन कैपेबिलिटीज वो भी बढ़ता रहता है। यहां पर वुमेन का एजुकेशन कम हो सकता है, धीरे धीरे आप देखेंगे यहां पर वुमेन का एजुकेशन भी बढ़ जाता है। सो देयर इज ग्रोइंग एस्पिरेशंस अमंग वुमेन टू हैव देयर ओन करियर, जिसके कारण धीरे धीरे द रोल ऑफ अ फैमिली और हैविंग किड्स, टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, वो थोड़ा पीछे हो जाता है। For all these kind of aspects, delayed marriages, late marriages, no marriages, not having children in case of a marriage, इसके कारण बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके कारण उनका बर्थ रेट कम होता जाता है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन जापान। इसी का एक कॉन्सेप्ट है टोटल फर्टिलिटी रेट। मतलब ए वुमेन इन हर रिप्रोडक्टिव एज, how many kids is she willing to have? If you see the average of a society and all, अगर total fertility rate TFR जो बोलते हैं, if it is around 2.1, तब जाके हम लोग कह सकते हैं उस सोसाइटी का पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल तक चला जाता है। लेकिन अगर ऐसा पॉपुलेशन टोटल फर्टिलिटी रेट से कम होता है, तब जाके आपको देखते हैं कि वो पॉपुलेशन बढ़ता नहीं है, कम होता जाएगा। जापान का हालत यही है। द लेटेस्ट डेटा सेज दैट द TFR ऑफ जापान इज अराउंड 1.1 to 1.2 और 10 साल से TFR द ग्रोथ रेट इज डिक्लाइनिंग। अगर उनका TFR देखा गया है तो फिर ऐसा ही है। So it is declining. This is the big problem for Japan. हाँ, हम आंध्र प्रदेश के बारे में भी बाद में बात करते हैं, पहले इसके बारे में कंप्लीट करते हैं। तो फिर इसके कारण क्या होता है? अगर आपको एक चीज एक भी देखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम लोग द पॉपुलेशन पिरामिड विच इज इन्वर्टेड। बेस कम है, चिल्ड्रन कम रहते हैं, वर्किंग एज कम रहते हैं, ओल्ड एज ज्यादा रहते हैं, तो फिर उनका पॉपुलेशन के कारण वहां पर जापान में क्या हो रहा है, उनका कंसर्न्स क्या है? एजिंग पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन एज हो जाता है, ये ज्यादा हो जाता है, तब जाके क्या होता है? इकोनॉमिक चैलेंजेस देखो, लेबर शॉर्टेज होता है। यूजुअली यू टेंड टू फाइंड लेबर शॉर्टेजेस, लेबर मिलेंगे नहीं, राइट? सो यू टेंड टू फाइंड दैट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम देयर। देन इफ यू सी दूसरा इकोनॉमिकली एक पॉइंट बता दिए, सोशली बताओ। नो चिल्ड्रन, हाँ, ओल्ड एज, कांट यू से दैट यू विल फाइंड लोनलीनेस? लोनलीनेस बढ़ जाता है, वो भी एक फैक्टर है, राइट? यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट, हाई पेंशन कंसर्न्स, हेल्थ केयर कंसर्न्स, ऑल दिस फैक्टर्स वुड बी देयर। और धीरे धीरे अभी समय ऐसा आ गया कि उनका पॉपुलेशन इतना कम होता जा रहा है कि क्या कल्चर, जापानीज कल्चर, आर वी गोइंग टू सी दैट द जापानीज कल्चर श्रिंक ओवर अ टाइम पीरियड? You will find all these as bigger problems, right? See, that is what are the aspects which you will find. इसके साथ साथ वो भी नहीं, धीरे धीरे स्पेशल डायमेंशन के पर्सपेक्टिव से आपको एम्प्टी सिटीज, गोस्ट विलेजेस, पॉपुलेशन कम होता जा रहा है, तो फिर थोड़ा विलेजेस भी धीरे धीरे कम होता जाएंगे, वो भी अब देखेंगे। एम्प्टी विलेजेस, गोस्ट विलेजेस, स्कूल क्लोजर्स, ये सारे चीज हमको देखेंगे। सो व्हेन यू सी द पॉपुलेशंस, गिव इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, and also from the point of view of government in terms of medical and healthcare, pension benefits and everything. All these are big population problems which they have. इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है वो भी देखते हैं हम लोग। You all might be aware about इंडिया का पुराना का पॉपुलेशन का पॉइंट, हम दो हमारे दो। That was a time where we tried to increase population, control population
saying that 2 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, explosion and all, 1970, 80, 90 and all. लेकिन अभी के ज़माने में वो धीरे धीरे 1970 से साउथ इंडिया में स्पेशली 50 ईयर्स हो गया ऑलमोस्ट, राइट? सो लास्ट 50 ईयर्स में एजुकेशन के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, ये सारे चीज फोकस करके हेल्थ केयर बेनिफिट्स को बढ़ा के, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा के, यू आर सीइंग दैट दे आर डूइंग रियली वेल इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन थोड़ा स्टेबल हो रहा है. सो आंध्र प्रदेश का पॉपुलेशन इट इज बिकमिंग स्टेबल. लेकिन कंसर्न क्या है, वहां पर भी टोटल फर्टिलिटी रेट इज नाउ अराउंड 1.4 to 1.5. मतलब दिस इज ऑल्सो बिलो रिप्लेसमेंट लेवल. तो इसके कारण अभी क्या करना चाहिए हमको? वी टेंड टू सी दैट बिकॉज ऑफ दिस recently Chandrababu Naidu, CM of Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu has given an idea of a policy wherein which they are talking about provide incentives, cash incentives for more children, right? So that is the concern which you are facing. So because of these things, they are having one kind of a concern. Say they you have seen that recently even in the delimitation bill and all, how South India इनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम होगा बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन रिड्यूस एंड ऑल, वो भी हम लोग देखे थे. बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स, लेबर शॉर्टेजेस एंड ऑल, क्या जापान जैसे आंध्र प्रदेश भी बन जाएगा क्या ऐसा? देयर आर सम डाउट्स. दैट्स वेज दे आर ऑल्सो गोइंग फॉर दीज एस्पेक्ट्स ऑफ सिमिलर प्रोमोटिंग पॉपुलेशन. जापान में भी पॉपुलेशन प्रमोशन का पॉलिसीज लेके आए थे. सो दैट्स वेयर विल स्टडी नाउ अबाउट द व्हाट इज द सॉल्यूशंस. आगे जाके क्या करना चाहिए या जापान को या आंध्र प्रदेश को? बिफोर आई स्टार्ट अबाउट द सॉल्यूशंस, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को, मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच चालू किया हूं. यू कैन ज्वाइन माई कोर्स. द लिंक इज गिवन हियर. द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. इफ यू टाइप Venkatesh textbook, you will get that geography optional. You can go to this view all plans. अभी का प्राइस है 25,000, लेकिन आपके लिए अगर एक कूपन यूज किए आपको और सस्ता हो जाएगा. इफ यू सी वेंकटेश, जस्ट टाइप वेंकटेश एज ए कूपन, माय नेम, आपको 14,000 में मिलेगा. और ये आपको चाहे तो ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 3,500. Okay, don't waste that opportunity. It would be only for a few days. You will not find these opportunities forever. Use this opportunity and try to get into the optional course for more such kind of innovative case studies. Solutions क्या होना चाहिए? Now, अभी तक जापान ने क्या क्या किया था? तो मेरा थोड़ा रिसर्च में मुझे ये पता चला, जापान में Japan has given so many kind of functions. They have started giving child care support, right? उनके वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस, सो दैट देर इज सम काइंड ऑफ ए बैलेंस, रिफॉर्म्स वगैरह ये सब किए थे. हाउसिंग सपोर्ट, टैक्स इंसेंटिव्स, बहुत सारी चीजें किए थे. स्टिल fertility is low. So अभी जाके there is one school of thought which says that जापान को पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए जो भी टैक्स इंसेंटिव्स एंड ऑल, इसके सारे में फोकस करना हमेशा वो एक बिगेस्ट डायलेमा हो सकता है. इंक्रीज बर्थ्स एंड ऑल, दैट माइट नॉट वर्क फॉरएवर. तो एक दिक्कत है यार, इंक्रीज बर्थ रेट विद इंसेंटिव्स. तो फिर डेमोग्राफर्स ने ये कहते हैं कि द सॉल्यूशन हो सकता है टू प्रोवाइड से सेलेक्टिव इमिग्रेशन, मतलब माइग्रेशन को बढ़ाओ. दैट कुड बी द ओनली स्ट्रेटेजी. वो एक टारगेट है. लेकिन हमारा वर्क, सी यू विल फाइंड वन मोर थिंग, देयर एजिंग पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ केयर एंड ऑल,
वो लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही ज्यादा है, 80 एंड अबव, 85 तक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज वेरी वेरी ह्यूज, 85. Male is around the same, but females would be somewhere around 88. You all know that females, उनके chromosomes के कारण, because of their natural structure, you tend to see that women tend to live for longer time period because they have better resistance, right? Chromosomes XX, XY. If you study from the male and the female chromosomes, you will understand that. तो फिर वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। इसको क्या कर सकते हैं वो लोग, इसको यूज करके आप वो लोग वहां पर से उनका वर्किंग एज 60 से 70 तक, 65 70 तक धीरे धीरे यूज कर सकते हैं। दे कैन गेट दैट ऑप्शन। सो वर्कफोर्स इंक्रीज द रिटायरमेंट एज, वो भी हो सकता है। सो मेरे हिसाब से, और जापान के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा है, उनके कैपेबिलिटीज भी है, दे कैन ऑल्सो यूज एआई। सो एक पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन ना कम होता जाता है, बढ़ाने में बहुत मुश्किल लगता है। चाइना भी देखो, वन चाइल्ड पॉलिसी से जैसे हटा दिए थे, बिकॉज देयर एज पॉपुलेशन इज ऑल्सो एजिंग, द सेम एस्पेक्ट ऑल्सो। दैट इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? सो दीज आर द एस्पेक्ट्स। तो आंध्र प्रदेश क्या करना चाहिए? आंध्र प्रदेश क्या करना चाहिए? सो फॉर आंध्र प्रदेश आई वुड सजेस्ट, देखिए आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इन द स्टेज 4 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांसिशन, whereas जापान इज इन स्टेज 5। सी यहां पर क्या हो रहा है, जापान यहां पर है, आंध्र प्रदेश यहां पर है, तो फिर उतना कम नहीं है। मतलब फ्यूचर में आंध्र प्रदेश जापान जैसे बन सकता है, लेकिन उसके लिए समय है, और इंडिया में ऑलरेडी पॉपुलेशन ज्यादा है, राइट? सो इफ यू सी इट फ्रॉम दैट कंसर्न, आंध्र प्रदेश को दे माइट टू वर्क ऑन promoting more industries so that धीरे धीरे लेबर माइग्रेशन को इंडिया में वो लोग यूज कर सकते हैं। सो दे ऑल्सो नीड टू हैव इंटरनल माइग्रेशन एज ए डोमिनेंट थीम, वो एक करना चाहिए। दूसरा, अभी एग्जिस्टिंग सप्लाई जो भी है ना, वहां पर फोकस ऑन क्वालिटेटिव स्किल्स ऑफ द पॉपुलेशन। हाँ, आपको एक जानते हैं ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड इज विल बी देयर फॉर ओनली ए स्मॉल विंडो, वो विंडो को यूज करके आगे बढ़ना चाहिए, राइट? सो दीज आर द एस्पेक्ट्स विच यू नीड टू टेक केयर। फैक्ट्स, एनालिसिस, केस स्टडीज, करंट अफेयर्स, लिंकिंग विद द थियरीज, ये सब किया ना, आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, you can join the course, and if you have any doubts, you can join the course. The link is given. You wanted to interact, you can join my Telegram channel. You can scan the QR code here, or if you want a direct conversation with me, you can drop a message. मैं आपसे डायरेक्टली बात करूंगा, ताकि आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल कोर्स लेने में कुछ भी मदद करना है तो फिर मैं कर सकता हूं। That's it for today then, all of you. टेक केयर। हम आगे मिलते हैं दूसरे केस स्टडी के साथ। थैंक यू।